My name is Maria Fatma. I'm 8 years old and I'm in grade 4. When I have done my course, I feel very awesome. You feel comfortable, right? After completing DPL, right? Yes. लेकिन पेरेंट्स की मेहनत के साथ साथ एक अच्छा टीचर मिल जाना वो बहुत बड़ी लक होती है। सोने पे सुहागा तो हम कह जी सकते हैं। जी मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लैंग्वेज कोर्स करवाने के बाद इतना यानी ये समझ लें कि माशाल्लाह क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह मारिया का रिजल्ट भी 99 पॉइंट। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि इनके एकेडमिक में इनकी काफ़ी हेल्प बहुत हेल्प मिली है कि वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक तो बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होता, जो स्कूल आने जाने के लिए या फिर ट्यूशन सेंटर आने जाने के लिए वो उस टाइम की बचत हो जाती है। दूसरा, बच्चा घर में बैठ के कॉन्फिडेंसली हर चीज़ अपने पेरेंट्स के सामने ये चीज़ें देख सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम प्राउड फील कर रहे हैं। और स्पेशली हम पेशावर आए हैं कराची से इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। But when he says that now I'm going out of the university, I finished everything here, so I was crying that my future have gone because बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू USCCS। दिस इज़ योर होस्ट कामरान रहमान और एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे पास हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जो कि दे हैव कम ऑल द वे फ्रॉम कराची। लेट्स हैव देयर इंट्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम मारिया। Walaikum Assalam. Maria, how are you? I'm fine, thanks for asking. What about you? I'm fine, thank you for asking. Maria, could you please introduce yourself to our audience? Yes, of course. My name is Maria Fatma. I'm 8 years old and I'm in grade 4. And at the first time when I was in the class of University of Spoken English and Computer Science, I feel all confused. I don't know how to talk in English. And I was so confused. I was scared to talk in English that something will bad happen. And after, when I have done my course, I feel very awesome. Like you feel comfortable, right? After completing DPL, right? Yes. Okay. So, how do you see online learning, Maria? Like, can all the kids, like in your age, can they have the online learning and can they benefit them? Yes, they can. But of course, they need their parents' help and they have to focus on what the teachers say. All right. Well then, so I'll ask her, I have got Maria's teacher here with me, Umar Amin. Assalamu alaikum, sir. Sir, कैसे हैं आप? खैरियत से? Sir, could you please tell us about, Maria to our audience that, how was she, contributed or how she took her classes and what was her, performance throughout her diploma? First of all, I'm very happy to meet the little one. And throughout the journey when we were learning the language and we were training her, तो इस दौरान एक चीज़ फील होती थी हमेशा हर एक क्लास में, वो ये फील होती थी कि the little one is supported by her parents and up to an extreme level. The level is this much कि इनकी क्लास को मैनेज करना, इनके लिए टूल्स को तैयार करना. Now for a kid like that, अगर पेरेंट्स सीरियस हैं तो बच्चों को भी लगता है कि yes, it is something important. So the parents somehow sort of managed to show her कि भाई बेटा ये चीज़ important है. तो उनके support की वजह से her dedication was able to be like, it was very clear to be seen that in classes she was very attentive. Parents would report immediately कि भाई student जो है वो क्लास के दौरान शायद attention नहीं दे रहा, सर आप please कुछ करें, बच्चे को engage करें. तो पेरेंट्स की कोऑपरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद बच्चे की अपनी भी डेडिकेशन, अपनी डेडिकेशन बहुत ज्यादा थी. In every class she would ask a lot of questions. Exactly. She would communicate with the teacher freely. So overall the USCCS online team, of course she didn't come directly to me. Through some teachers she came to me. तो जिन teachers ने मुझसे पहले इनको train किया, फिर उसके बाद मेरे पास जब ये आई, तो she was like a complete, a full form ready to acquire all the knowledge. इनकी performance बहुत जबरदस्त थी. Parents को मैं credit दूंगा बहुत ज़्यादा, फिर इनकी अपनी dedication को. So she was awesome overall. All right. So उमर अमीन साहब, आपका ये कहना है कि parents also have to play their role, right? Like
टीचर्स अगर जितना भी करे, लेकिन पेरेंट्स को भी यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी होगी। सो बात आती है पेरेंट्स की, तो हम चलते हैं पेरेंट्स से और उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी इंट्रोडक्शन चाहूँगा कि आप ऑडियंस को अपनी इंट्रोडक्शन दें कि आप है कौन और कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम बाबर नसीम है और मैं मारिया फातिमा का फ़ादर हूँ। हम कराची में रहते हैं, रेजिडेंस ऑफ कराची हैं, और लास्ट वीक हम कराची से यहाँ आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िकली आप लोगों से मुलाकात के लिए। ठीक है, तो ये आपकी मोहब्बत थी हमारे लिए। थैंक यू। कुछ हमारे अपने भी काम हैं, लेकिन स्पेशली जो थे वो काम बाद के थे, लेकिन स्पेशली हम यहाँ मारिया को एक तो आपके पास लेके आए, दूसरा आपसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच। तीसरी बात यह है कि जो कि मारिया जब क्लास में आई थी तो बहुत छोटी थी। जब हमने इसको इस क्लास के लिए अवेल किया, इसके एडमिशन करवाया, तो ये बहुत छोटी थी उस वक़्त, क्लास 1 में थी, ग्रेड 1 में थी। तो उस वक़्त फिर इसको कभी हम इसको अगर कंप्यूटर पे बैठाते भी, या फिर ये कहती नहीं क्लास मोबाइल पे लेनी है। अच्छा। तो इधर उधर की बातें, फिर बहुत छोटी थी ना, तो उस क्लास से अपने आप को रिवर्ट करने की कोशिश करती थी। फिर हम उस चीज़ को दूर करके फिर हम इसके पास बैठते, जैसा कि हमें इसके फेवरेट टीचर ने बताया कि नहीं, आप इसको जो है ना थोड़ा गाइडलाइन दें, इसके पास बैठें, इसको समझाएं ये चीज़ें। तो ये एक कलेक्टिव एफ़र्ट थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मारिया जो है ना इस क्लास में ये कोर्स कंप्लीट भी कर लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह कॉन्फिडेंसली ये स्पीक कर लेती है। और उसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ इस चीज़ पे। देखें, हर पेरेंट्स की एफ़र्ट होती है बच्चों के लिए। कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो अपने बच्चों के ऊपर मेहनत ना करता हो, करते हैं, किसी न किसी लेवल पे करते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम, लेकिन पेरेंट्स की मेहनत के साथ साथ एक अच्छा टीचर मिल जाना वो बहुत बड़ी लक होती है। तो जी, तो मैं इस बात पे बहुत मशकूर हूँ टीचर्स का और इस इदारे का कि हमें इतने अच्छे टीचर दिए कि हमारे बच्चे माशाल्लाह आज ये इस लेवल पे है हमारी बच्ची। और इसी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम विद फैमिली हम वहाँ से मूव करके यहाँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। अच्छा सर, मैं अब ये जानना चाहूँगा क्योंकि इनकी एज काफ़ी कम थी जब इन्होंने USCCS ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। सो कैसे देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग को? अब क्या ये बाकी जो बच्चे हैं जो मारिया की एज के, क्या ये उनको भी बेनिफिट कर सकते हैं? लाइक व्हाट डू यू थिंक? ये आजकल लोगों का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो ट्रेडिशनल क्लासेस, जो फिजिकल क्लासेस है, दे आर मोर बेटर देन दी ऑनलाइन वन सॉरी। सो आप क्या देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस को आप कैसे देखते हैं, फ्यूचर में कैसे देखते हैं? देखें सर, जहाँ तक बात फ्यूचर की है, फ्यूचर में तो मेरे ख्याल में ये टोटली ऑनलाइन हो जाएगा सिस्टम। जिस तरह से सारे डिजिटल होने। जी बिल्कुल। और फिज़िकल एक तो टाइम की बचत है, ठीक है, बच्चों की। दूसरा, अगर जैसे इस इदारे के टीचर्स हैं, ऐसे टीचर अगर हर इदारे के अंदर होना तो मेरे ख्याल में फ़िज़िकल तो ख़त्म ही हो जाएगा। और मैं बहुत ज़्यादा हर बच्चे के लिए मैं इस चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ कि एक तरह की मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन होगी कि अगर बच्चों को ऑनलाइन इतने अच्छे टीचर मिल जाएं, इतने अच्छे इदारे मिल जाएं, तो वो बाकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स सर, थैंक यू। अब जैसे हमने पेरेंट्स की बात की तो हम मैम से भी ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा इनके साथ रही सर, तो अक्सर बाहर हुआ करते थे, आप इनके साथ होती थी, तो कैसे देखती हैं इनकी जर्नी को, जो 2 साल की जर्नी है मारिया की हमारे साथ, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लैंग्वेज कोर्स करवाने के बाद इतना यानी ये समझ लें कि माशाल्लाह क्लास में एक्चुअली हमारी फैमिली में उतना यानी कि वो नहीं था लैंग्वेज का, बस करते थे, यानी कि लैंग्वेज का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन मारिया को जैसे हमने करवाया तो उसका बेनिफिट हमें ये मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया का रिजल्ट भी 99 पॉइंट। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि इनके एकेडमिक में इनकी काफ़ी हेल्प, बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, तो इनके टीचर्स की तरफ से भी आप कमेंट्स की तरफ से कमेंट्स बहुत अच्छे माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग इनका क्लास में भी रहा। तो जाहिर सी बात है, अब इनकी एकेडमिक में परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो टीचर्स की तरफ से भी आपको कमेंट्स आए होंगे, फीडबैक्स आए होंगे? बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जब भी इनकी टीचर्स मीटिंग होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। स्पेशली पूछते हैं कि घर में कौन इनको गाइड कर रहे हैं, कौन इनको स्टडी करवाता है, कौन पढ़ाता है।
तो हमें ये समझ लें कि अब माशाल्लाह ये जैसे ओ लेवल कर रही हैं, तो ओ लेवल के लिए बच्चों को स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कितना डिफ़िकल्ट होता है करवाना, और फिर जॉब करने वाली लेडीज़ के लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है। तो हमें ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। माशाल्लाह लैंग्वेज का हमें इतना वो बेनिफिट मिला कि हमें बच्चे का यानी स्पेलिंग के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, या समझाने के लिए स्कूल का बस ये एक लेक्चर जो स्कूल में देती हैं टीचर, तो उसके बाद माशाल्लाह उसके बावजूद 99.8 99.6 ये पोजीशन होती अच्छा, है। ये मतलब स्कूल से आने के बाद कोई ट्यूशन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं करते? कुछ भी नहीं, कुछ ये नहीं। सिर्फ इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ऑनलाइन आप ये क्लासेस की समझती वजह हैं? से जी मैं ये समझती हूँ इसका कितना बड़ा बेनिफिट है। बहुत ज़्यादा। तो मैं तो ये चाहूँगी कि हर पेरेंट्स ये करवाएं। अच्छा, ये हम बात कर लेते टूल्स पे। तो मारिया बहुत छोटी थी, तो हाउ कुड शी मैनेज और हाउ डिड शी मैनेज ऑल द टूल्स, लाइक हमारी जो क्लासेस होती है वो जूम पे होती हैं, राइट? सो कैसे उन्होंने मैनेज किया, आपने कैसे मैनेज किया इनको? क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आप जब ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो आपने ये कैसे मैनेज किया? सिंपल इसके लिए वाईफाई होना चाहिए, और इसके अलावा एक टेबल और चेयर और साथ में मोबाइल, और इनके लिए एक अच्छा सा हेडफोन हेडफोन ये ज़रूरी है। इतना क्रेज था हम लोगों को कि बच्चे सीखे। जिस दिन आपका क्लास था उसी दिन शाम में जाके इम्तियाज से हम दोनों गए और इसको अकेले बैठाए घर में कि आप बैठो, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। और कहीं कहीं मैं खुद जब ये मेरे साथ थी मारिया, तो ये कभी कभी जो है रेजिस्टेंस शो करती थी या क्लास नहीं लेना चाहती थी। इंसान बच्ची का मूड होता है ना, तो वहाँ पे आप क्या करते, ऐसा क्या किया करते थे कि इनका मूड बनाते थे? क्योंकि अक्सर मैं आप लोगों को कॉल किया करता था डायरेक्ट कि मारी इज़ नॉट इन द क्लास, शी हैज़ टर्न ऑफ हर वेब कैम, राइट? सो वहाँ पे आप कैसे इनको मोटिवेट किया करते थे? वहाँ आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि हमें खुद भी इतना क्रेज़ होता था कि नहीं क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहीं बाहर भी होते थे तो अगर क्लास में बाज़ दफ़ा बच्चे हैं ना कि नहीं क्लास नहीं ले रहे, कुछ फ़ौरन से हम आपके साथ कांटेक्ट में रहते थे। तो इसमें अप्रिशिएट हम आपको करते हैं क्योंकि आपका क्रेज़ था, आपकी मोहब्बत थी कि हम कहीं भी जाते थे, लेकिन हमें एक वो फ़िक्र होती थी कि नहीं सर कमरान नहीं क्लास लेनी ही लेनी। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे करूँगा, क्योंकि मारिया जैसे छोटी बच्चियाँ, तो यहाँ पे जो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास है उसमें कौन कौन से एज के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं? ज़रा इस पे हमारे ऑडियंस को बताएं कि क्लियर हो जाए, क्योंकि ये जितने भी हमारे ऑडियंस है वो ये समझते हैं कि ये ऑनलाइन लर्निंग सिर्फ बड़ों के लिए है। सर इसको ज़रा वाज़ेह कर दें प्लीज़। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मारिया ग्रेड 4 की स्टूडेंट है, तो इनकी एज काफ़ी कम है। और जैसे कि इनके वालिद ने जिक्र किया कि क्लास 1 की स्टूडेंट थी, उस टाइम इनका एडमिशन कराया, फिर इन द टाइम स्पैन ऑफ ऑलमोस्ट 2 ईयर्स इन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया अपना। अब ऐसा है कि क्लासेस जो टीचर्स के पास हैं वो प्री एलिमेंट्री लेवल तक की हैं। एक प्री एलिमेंट्री होता है, फिर एलिमेंट्री होता है, फिर प्री स्टार्टर्स होता लेवल्स है। हैं। लेवल्स हैं सारे। अब जो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो उनको प्री एलिमेंट्री लेवल में लेके जाते हैं, जहाँ पर इनको एक बाकायदा एक्सट्रीम लेवल के और हाई एक्सपीरियंस वाले टीचर्स को हम वहाँ पर रखते हैं, ताकि उन बच्चों को इस तरह से गाइड किया जाए ताकि वो हायर लेवल्स के लिए तैयार हो जाएं। अगर वो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे भी हैं, अब आप मारिया की एग्जाम्पल ले सकते हैं, बाकी हमारे और एलिमनाइज है, जैसे आप महानूर चौधरी को एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, हुर्रम मुश्ताक है। यस, आई थिंक क्लासमेट्स सेम स्कूल। छोटे छोटे हैं लेकिन वो इतने ट्रेन हो जाते हैं, जूनियर फैकल्टी जो जूनियर क्लासेस कंडक्ट करते हैं तो वो इतनी अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं क्लासेस में, इतनी अच्छी तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं कि बच्चे आगे फिर आ सकते हैं। तो क्लासेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स ले सकते हैं, एडल्ट्स की भी अपनी असेसमेंट होती है, फिर उनको उनके मुताबिक प्री स्टार्टर्स में या हम स्टार्टर्स में जगह देते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या वर्किंग क्लास है। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं और एक्चुअली ये कोर्सेज बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाद में प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि ओ वी आर लैकिंग समथिंग, तो उनके लिए अलग क्लासेस हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए अलग इन्वायरमेंट है, उनके लिए अलग क्लासेस हैं। तो प्री एलिमेंट्री बच्चे उसमें आ सकते हैं और जो मैच्योर हैं या एज्ड हैं तो वो कर सकते हैं कि प्री स्टार्टर्स लेवल पे आ जाए। तो द कोर्स इज़ फॉर एवरीबॉडी। ओके सर, यहाँ हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, ज़रा उनको ये बताइए कि अगर उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों को इनरोल करवाना हो तो किन चीज़ों का ख्याल उनको रखना चाहिए? मतलब क्या क्या चीज़ें उनके पास होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लासेस? Before starting online classes, a few basic things that I would say. The first thing is that they should have a good internet connection. This is very important. तो सबसे basic चीज़ जो है वो internet connection का है. If it is like nowadays we have different mobile devices है या
और 4G डिवाइसेस होते हैं मार्केट में है, काफ़ी IT पाकिस्तान में काफ़ी आगे चली गई है, तो कर सकते हैं आप, कहीं पर भी इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं. विद दैट अ लिटिल बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर इज इम्पोर्टेंट, अ लिटिल बेसिक इंफॉर्मेशन, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अवर LMS. वी आर टेकिंग क्लासेस थ्रू LMS. तो पहले तो आप गाइड करते हैं, लेकिन उससे पहले उनको इतना तो आना चाहिए कि हाउ टू टर्न इट ऑन, how to search a website, how to search a link, copy a link, ये थोड़ी सी मालूमात होनी चाहिए. थैंक यू सो मच सर. मैं आपका एक लास्ट कमेंट चाहूँगा, एक लास्ट फीडबैक. हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, क्या कहेंगे हमारी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से? ओवरऑल कैसा देगा, आपने कैसे पाया हमारी ऑनलाइन क्लासेस को? सर हमारे ऑडियंस को बताइए प्लीज़. अच्छा, जो मेरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जहाँ तक मैंने देखा है, मेरी बेटी ने माशाल्लाह एक बहुत अच्छे तरीके से ऑनलाइन क्लासेस अपनी कंप्लीट की हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और आज ये इस लेवल पे है कि शी कैन स्पीक कॉन्फिडेंसली. इस चीज़ को देखते हुए मैं तकरीबन हर बच्चे के लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं इनको रिकमेंड भी करता हूँ, और मेरा ये एक राय भी है कि हर पेरेंट्स इसके ऊपर सोचे अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, कि वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ भी हैं. लेकिन ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन, ये इनके ऊपर ज़रूर तवज्जो दें कि अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और इस तरफ आने की कोशिश करें, ताकि बच्चों के अंदर आने वाले वक्त में उसके ऊपर वो कॉन्फिडेंस हो, स्पीकिंग पावर उनकी अच्छी हो. जैसे मेरी बच्ची माशाल्लाह पहले स्कूल में जब जाती थी तो वापस आती थी तो उसको यही होती थी, कंप्लेन होती थी कि बाबा वहाँ सारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में स्पीक करते हैं. स्पीक कर लेती थी लेकिन उस लेवल पे नहीं थी. तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए अभी मुझे तो इस चीज़ का पहले नॉलेज नहीं था. जब मैंने ये चीज़ें देखी नेट के ऊपर, US ECS का ये प्रोग्राम्स देखे, टीचिंग मेथड देखे, फिर वो ये ऑनलाइन क्लासेस का सबसे जो बेस्ट मुझे लगा कि वो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक तो बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होता, जो स्कूल आने जाने के लिए या फिर ट्यूशन सेंटर आने जाने के लिए वो उस टाइम की बचत हो जाती है. दूसरा, बच्चा घर में बैठ के कॉन्फिडेंसली हर चीज़ अपने पेरेंट्स के सामने ये चीज़ें देख सकता है. तो मैं इसलिए ये चीज़ें रिकमेंड करता हूँ. फिर बाद में जब अभी वही बच्ची है कि अपने स्कूल में अपनी क्लासेस के अंदर, अपनी क्लासेस क्या कि उससे अगली क्लासेस के अंदर भी डिबेट में भी माशाल्लाह टॉप पे जा रही होती है. तो ये इंग्लिश ये ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही मुमकिन हो सका है, वरना इस वक्त टाइम भी बहुत कम होता है, स्पेशली पेरेंट्स के पास भी अगर वो जॉब करने वाले हों तो उनके पास भी टाइम बहुत कम होता है. तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, और तमाम पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से ये पैगाम है कि वो कोशिश करें अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की तरफ लेके आएँ, ताकि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस और वो लेवल बढ़ सके. थैंक यू सो मच सर. जी मैडम, तो आप अपने लास्ट कमेंट्स सर हमारे ऑडियंस को दीजिए. जी, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है, और मैं तमाम स्पेशली मदर्स को कहूँगी, क्योंकि फ़ादर तो ज़ाहिर है टाइम नहीं होता उनके पास, तो जो मदर जितना ज़्यादा अपने बच्चों के साथ सिंसियर होंगी, जितना बच्चों से ज़्यादा इंटरेस्ट पेरेंट्स को होना चाहिए, स्पेशली मदर को होना चाहिए. तो आप अपने बच्चों को जितना टाइम देंगी, उनके साथ आपने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ आपने ख़ुद अपने बच्चों को वक्त देना है, उनके साथ बैठना है, प्रॉपर उनको टाइम देना है, और तमाम टूल्स जो हैं जो अपने बच्चों को प्रोवाइड करने हैं. क्लास से पहले आपको हर चीज़ बिल्कुल मेंटेन करना है, और उसके बाद फिर बच्चों को आपने तैयारी भी करवानी है. क्लास कंप्लीट होने के बाद उनका होमवर्क, उनका क्लास वर्क, उनकी तमाम चीज़ें, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा, क्लास जैसे ही कंप्लीट होती है या कोर्स कंप्लीट होता है तो इसका रिज़ल्ट आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह. तो इस बात का मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश की पूरी टीम का, कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम प्राउड फील कर रहे हैं, और स्पेशली हम पेशावर आए हैं कराची से इनका शुक्रिया अदा करने के लिए. और थैंक यू सो मच सर. मारिया, आप ज़रा बताइए अपने जर्नी के हवाले से. तमाम ऑडियंस आपको देख रही हैं, बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या आपकी एज थी, ईच एंड एवरीथिंग. Okay, so when I started, like, I was a bit so scared that when I will enter the class, everybody will speak in English and I will speak in Urdu, because I don't know how to talk in English. So I was also scared that my sir would be angry at me, that you don't know the basic words, you don't know the basic English. So after a few months, I started to learn better. Okay, you started to speak better. Yes. So then I was a little bit comfortable that
now I know how to speak a little bit English. Then after a few more months, then I speak frequently. Alright. Then I feel all right that now my sir will not say anything to and me. you became comfortable with the environment, right? Yes, so then after 16 months, I was in Sir Umar class. But when he says that now I'm going out of the university, I finished everything here, so I was crying that my favorite sir have gone because. But when he was going, when he said that, I started to You're cry. still crying, Maria. Why are you crying now? It's a thing from the past. Why are you crying now? I'm not crying. I can see the tears in your eyes. But when I joined the spelling competition, I saw Sir Umar there, and then I know that he was joking. Thank you, respected Umar Amin Saab. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Maria, for coming and giving us your precious time, coming all the way from Karachi. I know it's something that we can't thank you enough for, right? Thank you so much for coming, and thank you so much for giving us your precious time. So thank you everybody for watching, and you all have a great time. Stay blessed, and Allah Hafiz.